थैंक यू होली स्पिरिट पिता। धन्यवाद यीशु मेरे खुदावंद पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा मेरे प्रभु, मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे खुदावंद। आज प्रभु आप अनुग्रह कीजिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता। प्रभु दया कीजिए मेरे जिंदा परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं आज आपकी उपस्थिति को मांग लेता हूं मेरे सामर्थ्य खुदावंद पिता। थैंक यू होली स्पिरिट। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। Disconnected. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit, 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 thank you Jesus, thank you Holy Spirit। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा मैं थोड़ा वेलकम करता मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं थोड़ा वेलकम करता मेरे खुदावंत पिता। प्रभु अनुग्रह करो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा मैं थोड़ा वेलकम करता प्रभु। दया करो मेरे परमेश्वर पिता। जिन्हें भी लोग मैंने सुन रहे ने पिता परमेश्वर पिता, आज प्रभु ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਨੂੰ ਲੈਣ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਬਾਦਲ ਉਸ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ सम्मुख ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਇਹ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡੀ ਬੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੁਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਣੇ ਪਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਨਾ ਰਹਿਣ ਪਿਤਾ ਅੱਜ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਵੈਲਕਮ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਵੈਲਕਮ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਵੈਲਕਮ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ। जिन्हें लोग मैंने सुनते पे ने सब जन अपने आप को समर्पण करो उस परमेश्वर दे अगे। सब जन अपने आप को समर्पण करो उस परमेश्वर के सामने आज। अपने आप को पूरी तरह से आज समर्पण करो उस परमेश्वर के सामने, डेडिकेट करो उस परमेश्वर के सामने, ताकि परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में अपनी महिमा को प्रकट करे, अपने काम करे और अपनी उपस्थिति दी आज आपको। और जिस जगह पर आप बैठे हो, जिस जगह पर आप खड़े होकर सुन रहे हो, उस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति को मांगो आज। अपने घरानों के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति को मांगो, अपने बच्चों के ऊपर अपनी परमेश्वर की उपस्थिति को मांगो आज। आज पूरी तरह समर्पण करते हुए परमेश्वर के सामने आज पूरा समर्पण करो परमेश्वर को, अपने आप पूरी तरह डेडिकेट करो आज। वो आपसे बात करनी चाहता है आज। वो हर एक जन से बात करनी चाहता है, क्योंकि वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो आपसे बात करनी चाहता है। आज उसे मौका दो बात करने के लिए। जब आप पूरी तरह डेडिकेट करते हो, अपने आप को समर्पण करते हो,
तो परमेश्वर अपनी महिमा को आपके ऊपर प्रकट करता है, अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करता है। उसका स्वभाव है अपने आप को प्रकट करने का। आज भी वो अपने आप को प्रकट करना चाहता है अपने बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। आज सबके साथ बातें करनी चाहता है वो, जिस तरह वो मूसा के साथ करता था, जिस तरह वो अब्राहम के साथ करता था। अब वो आज आपके साथ बात करनी चाहता है। बाइबल बताती वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो जिस तरह मूसा से बात करता तो वो आपसे भी बात करने वाला परमेश्वर है। वो आपसे बातें करनी चाहता है, अपने अंतिम दिनों के चिन्ह आपके ऊपर प्रकट करने चाहता है। थैंक यू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा प्रभु, पवित्र आत्मा प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे जिंदा परमेश्वर प्रभु, आज की उपस्थिति के लिए मेरे खुदावंद पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। आज की हजूरी के लिए पिता मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा। थैंक यू होली स्पिरिट। पिता मैं अपने आप को भी समर्पण करता हूँ मेरे खुदावंद आपके आगे, अपने भूख को समर्पण करता हूँ प्रभु आपके आगे। पिता प्रभु मेरा एक भी वर्ड इस मुंह से ना निकले पिता परमेश्वर प्रभु, जो आपके द्वारा हो प्रभु, आपने ठहराया गया प्रभु, आपके द्वारा ठहराया गया प्रभु, वही आज मेरे मुंह से निकले प्रभु। जितने भी लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आज इनके कानों को खोल दीजिए पिता, इनके आत्मिक कान खोल दीजिए मेरे प्रभु, इनकी आत्मिक आंखें खोल दीजिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तांजो प्रभु, ये प्रभु आपके वचन को ग्रहण कर सके, आपके वचन के साथ प्रभु ये भर सके पिता। प्रभु आपका वचन ही प्रभु अपने लोगों को छुड़ाता है प्रभु, आपका वचन ही अपने लोगों को आजाद करता है प्रभु। प्रभु ये सत्य प्रभु इनके कानों तक पहुंच सके मेरे परमेश्वर प्रभु, इनकी स्पिरिट में जाए पिता और इनकी स्पिरिट फलवंत हो मेरे खुदा। थैंक यू होली गोस्ट, थैंक यू होली गोस्ट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु मेरे, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हैं और प्रार्थना मांगती यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मेरे परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। मैं सबको जय मसीह की बोलता हूँ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं आपका वेलकम करता हूँ इस लाइव स्ट्रीम के अंदर, संडे सर्विस के अंदर। और आज जो मुझे परमेश्वर ने वचन दिया है वो प्रेयर के ऊपर है, प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना वो है कि हम परमेश्वर के साथ बात करना, कम्युनिकेट विद गॉड, वो प्रेयर है। आज हमारी प्रार्थना क्या है कि हम सिर्फ अपनी एक लिस्ट परमेश्वर के सामने रख के और समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। परमेश्वर की सुनना नहीं, हम सुनते नहीं हैं। कम्युनिकेट तब होता है जब आप अगले इंसान की भी सुनो और आप खुद भी बोलो। आप किसी को फोन करते हो, आप उसका हालचाल पूछ के फोन काट दोगे तो ये बात नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। इसलिए रियल कम्युनिकेशन क्या है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनो, उसके साथ बात करो, कम्युनिकेट विद गॉड। तो ये प्रार्थना है।
अभी प्रार्थना दो रेलम्स है प्रार्थना के भी, एक फ्लैशली और एक स्पिरिचुअली रेलम। जब हम फ्लैश में प्रार्थना करते हैं तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं हम प्राप्त करते। हम लोग देखते हैं कि जब हम फ्लैश में प्रार्थना करते हैं कभी कभी हमें रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमने शरीर में प्रार्थना करते हैं। हमेशा प्रार्थना का रिजल्ट स्पिरिट में आता है, फ्लैश में नो रिजल्ट। उसी तरह हम प्रेज एंड वर्शिप भी करते हैं। प्रेज एंड वर्शिप भी हम दो तरीके से करते हैं, एक फ्लैश में और एक स्पिरिट में। जब हम फ्लैश में उसकी आराधना करते हैं, शरीर में उसकी आराधना करते हैं, तो सिर्फ हम सिंगिंग करते हैं। जब हम स्पिरिट में उसकी आराधना करते हैं 2 सेकंड के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पर उतर आती है। क्योंकि हम मसीह में, हम शरीर में नहीं है, हम आत्मा में है। क्योंकि बाइबल बताती है जो शरीर से जन्मा वो शरीर, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा। हम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद, उसने क्रूसीफाइड हुआ, क्रूसीफाइड होने के बाद वो कब्र में गया, कब्र में 3 दिन के बाद वो जिंदा हुआ। तो उसी तरह आज हम भी अपने शरीर में मर चुके हैं और जो हमारे अंदर जीवित है वो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हम एक स्पिरिट है, हम इस शरीर में रह रहे हैं बट हम एक स्पिरिट है। इसलिए हमें स्पिरिचुअली रेलम को जानना जरूरी है। अभी हम देखेंगे प्रार्थना के 3 रेलम्स। जब हम स्पिरिचुअली प्रार्थना के 3 रेलम्स है। हम मत्ती में पढ़ते हैं, मत्ती 7:7 में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बट उसकी रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है? मांगते रहो, ढूंढते रहो और खटखटाते रहो। यहां पर हम 3 वर्ड्स को देखते हैं अपनी जिंदगी बाइबल के अंदर। पहला क्या है? मांगना। सेकंड क्या है? देखना। थर्ड क्या है? खटखटाना। उसी तरह हम पुराने नियम में भी देखते हैं। जब हम मिलाप के तंबू को देखते हैं उसमें भी 3 पोर्शन थे। पहला पोर्शन था बाहरी आंगन, सेकंड पोर्शन था पवित्र स्थान और थर्ड पोर्शन क्या था? महापवित्र स्थान। उसी तरह जब हम प्रार्थना में प्रार्थना करते हैं तो हम इन 3 रेलम्स के में होके परमेश्वर से मिलते हैं। फर्स्ट रेलम क्या है? बाहरी आंगन। बाहरी आंगन में द ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस पड़ा है, उसमें बलिदान की वेदी बनी हुई है। उसका मतलब क्या है कि जब हम प्रार्थना में शुरुआत करते हैं तो अपने आप को बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने समर्पण करना है, अपने आप को पूरा समर्पण करना है, डेडिकेट करना है और अपने डिजायर को मारना है, अपनी इच्छाओं को मार के पूरी तरह परमेश्वर को सौंप देना है अपने आप को। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं इस पहले पोर्शन के अंदर, पहले रेलम के अंदर, बाहरी आंगन में, ये 100% श्योर है कि उस बाहरी आंगन में डेविल आपको अटैक करेगा ही करेगा। आप बैठोगे, आपका फोकस नहीं बन पाएगा, आपके माइंड में कुछ याद आएगा आपको कि ये करना है वो करना है, आपका फोकस नहीं बन पाएगा। बट आपको बाहरी आंगन में अपने आप को स्टिल रखना है, बलिदान के रूप में चढ़ाना है और अपने आप को शुद्ध करना है। जब आप इस चीज में सक्सेसफुल होते हो, अपने आप को पूरी तरह डेडिकेट करने में सक्सेसफुल होते हो, अपने आप को पूरी तरह शुद्ध कर लेते हो बाहरी आंगन में, तो यहां पर आपको बहुत तगड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। यहां पर आपकी जिंदगी में छुटकारे होते हैं। यहां पर जो लोग बीमार हैं वो चंगे किए जाते हैं। यहां पर सिर्फ हमने अपनी विनतियां को लेना है और परमेश्वर के वर्ड को क्लेम करना है अपनी जिंदगियों के अंदर। ये बाहरी आंगन है, ये पहला रेलम है। यहां पर सिर्फ हमने अपने आप को समर्पण करके परमेश्वर के प्रॉमिस को अपनी जिंदगी में क्लेम करना है। जैसे किसी का परिवार मसीह में नहीं है, वो अन्य जाति है, तो इस रेलम में हम अपने वचन को क्लेम कर सकते हैं। परमेश्वर आपका वचन कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। ये पहला रेलम है।
उस रेलम को समझना जरूरी है, अपने आप को समर्पण करना पूरी तरह। उसमें आपकी एक भी डिजायर नहीं होनी चाहिए, आपके फ्लैशली थिंग्स नहीं होनी चाहिए उसमें। आपकी विनतियां परमेश्वर, आप बाहरी आंगन में अपनी विनतियां भी रख सकते हो, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रख सकते हो। जब आप इस रेलम में सक्सेसफुल होते हो तब आपको एंट्री मिलती है पवित्र स्थान के अंदर। पवित्र स्थान के अंदर हमने देखना है उस जगह पर 3 चीजें पड़ी रहती है। पेट की रोटियों का टेबल पड़ा रहता है, लैम्प स्टैंड पड़ा रहता है, और एक ऑल्टर ऑफ इंसेंस है। 3 चीजें पड़ी होती है। यहां पर सिर्फ हमने पहले रेलम में हमने सिर्फ अपनी विनतियां कर ली, कुछ भी कर लिया, सब कुछ अपने परमेश्वर को डेडिकेट कर दिया, विनतियां कर ली, क्लेम कर लिया वर्ड। और सेकंड रेलम पे कौन सा रेलम आता है? सीकिंग राउंड। जैसे पहला है मांगो तो दिया जाएगा, दूसरा कौन सा है? ढूंढो, इंग्लिश में लिखा है सीकिंग। यहां पर सिर्फ हमने परमेश्वर को देखना है, क्योंकि यहां पर 3 चीजें पड़ी हुई हैं। पहला पेट वाली रोटी है, इसका मतलब है यीशु मसीह जीवन की रोटी है। सेकंड है लैम्प स्टैंड, यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। थर्ड है टेबल ऑफ इंसेंस, मींस प्रेज एंड वर्शिप। इस रेलम में सिर्फ आपने अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाना है, अपने परमेश्वर की महिमा करनी है और उसे देखना है। कोई रिजल्ट नहीं है, कोई विनतियां नहीं करनी इस रेलम में। इस रेलम में अपने शरीर को मारना है और अपने आप को स्पिरिट में तब्दील करना है और सिर्फ उसकी उपासना करनी है, उसकी प्रेज करनी है, उसकी वर्शिप करनी है, उसको अपनी वर्ड्स के द्वारा ऊंचा उठाना है, उसे देखना है। सिर्फ जो आपने विनतियां की उसका रिजल्ट नहीं पाना इस रेलम के अंदर, आपको सिर्फ उसको देखना है, एक इंसान के तौर पे उसको देखना है, उसको सामने रख के उसको देखना है, उसकी प्रेज एंड वर्शिप करनी है। और थर्ड रेलम जो आता है वो है महापवित्र स्थान। और महापवित्र स्थान में आप शरीर के अंदर एंटर नहीं कर सकते। महापवित्र स्थान में आपको एंटर करने के लिए पूरी तरह स्पिरिट में होना पड़ेगा। जब आप महापवित्र स्थान में बैठते हो फिर आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक होता है। तब आप परमेश्वर के साथ बात करते हो। बाइबल बताती है वो आपकी आत्मा के साथ बात करता है। जब आप महापवित्र स्थान में बैठते हो उसमें फिर परमेश्वर बात करता है, आप कुछ नहीं बात करोगे। फिर उस टाइम पे आप शांत रहना है, आपको सिर्फ शांत माहौल में, साइलेंट मोड में रखना है, अपने आप क्वाइट मोड में रखना है। सिर्फ उस टाइम पे आपको परमेश्वर को बोलने देना है। महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति बाहरी मात्रा में उतरती है। फिर वो बात करता है, फिर अपने आप को रिवील करता है, अपनी इच्छाओं को आपके ऊपर प्रकट करता है। महापवित्र स्थान में अपनी इच्छा, आपकी डिजायर, आपका रोटी कपड़ा मकान परमेश्वर के सामने नहीं रख सकते आप। फिर आप परमेश्वर की इच्छा उस जगह पर, अपनी इच्छा को परमेश्वर उस जगह पर रिवील करता है, प्रकट करता है आपके ऊपर। जब आप पूरी तरह महापवित्र स्थान में बैठोगे, महापवित्र स्थान की उपस्थिति में घंटों घंटों समय बिताओगे, जिस तरह मूसा पहाड़ से उतरा, उसकी चेहरों फेस के ऊपर किरणें थी, उसका फेस चमक रहा था, उसी तरह जब आप महापवित्र स्थान के अंदर से बाहर निकलोगे तो आपका फेस चमकेगा। आपकी शक्ल को लोग देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली यीशु मसीह की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगी। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने
मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। इंसान 3 चीजों से बना है, बॉडी, प्राण और स्पिरिट। शरीर, प्राण और आत्मा। जब आदम ने, हवा ने पाप किया तो आत्मा उनसे अलग की गई, तो वो सिर्फ एक शरीर और प्राण उनके जीवन में रह गए। जब आप महापवित्र स्थान में बैठोगे, उसकी उपस्थिति में बैठोगे, तो आत्मा फिर आपके साथ जुड़ा जाता है। तब परमेश्वर का आत्मा और आपका आत्मा एक होता है। तब जब आप बाहर निकलते हो उस रेलम के अंदर से, यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे से भी बड़े काम करोगे। जब आप उस रेलम के अंदर से बाहर निकलते हो तो आप परमेश्वर की महिमा को फ्लो होते देखोगे, उस महिमा का प्रकटीकरण देखोगे, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो हर वक्त अपने आप को प्रकट करना चाहता है आपके ऊपर। वो आपसे बात करनी चाहता है, बट हम उस परमेश्वर को मौका ही नहीं देते बात करने का। हम सिर्फ अपनी लिस्ट लेके परमेश्वर के पास जाते हैं कि परमेश्वर हमें रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, मकान दे दे, ये दे दे, वो दे दे, और दैट्स इट, आमीन करके खत्म। हम कभी उसकी सुनना नहीं चाहते। और असली सेवकाई क्या है, असली मिनिस्ट्री क्या है? परमेश्वर को सुनना ही रियल मिनिस्ट्री है, रियल सेवकाई है। जब आप उसको सुनना सीख जाते हो तो आप रियल मसीही बन जाते हो, क्योंकि वो कोई मुर्दा परमेश्वर नहीं है कि वो बात नहीं करता। बाइबल बताती है, बाइबल जिक्र करती है कि वो अपने नबियों से, अपने प्रेरितों से समय समय से बातें करता था। वो आज भी बात करनी चाहता है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। क्या हम उसकी सुनना चाहते हैं, या सिर्फ हम अपना ही पोर्शन पूरा करते हैं, अपना ही वो एक लिस्ट, राशन की लिस्ट लेके परमेश्वर के सामने रख के आमीन करके खत्म करते हैं? हमें उसकी सुननी है। हमें ये फ्लैशली चीजों के ऊपर मेहनत नहीं करनी। हम एक स्पिरिट हैं। जब हम स्पिरिटरी रेलम में मूव करते हैं तो फ्लैशली चीजें ऑटोमेटिकली हमारे साथ ऐड की जाती है, हमारे साथ जोड़ी जाती है। हालेलुया। इसीलिए हम शरीर में रह रहे हैं। शरीर जहां तो मिट्टी के अंदर चला जाएगा, जहां तो लकड़ी के ऊपर होगा, पर जो हमारी स्पिरिट है, हमारी आत्मा, वो परमेश्वर के पास जाएगी और वही इसका न्याय देगी हमारे कामों का जो हम कर रहे हैं। और जब आपकी स्पिरिट और परमेश्वर की स्पिरिट एक होती है तो ऑटोमेटिकली आपका करैक्टर परमेश्वर के करैक्टर में तब्दील होता है, आपका स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव में तब्दील होता है, आपके वर्ड्स परमेश्वर के वर्ड्स में तब्दील होते हैं। इसलिए जिसके साथ आप ज्यादा समय बिताओगे आप उसके समान होते जाओगे। आप जिसके साथ ज्यादा समय बिताओगे आप उसको क्लियरली सुन सकते हो, उसकी आवाज को पहचान सकते हो। जब आप आज प्रार्थना कर ले, इसके बाद 10 दिन बाद प्रार्थना की, तो आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। आप कंटिन्यू उसके साथ बैठोगे। आज मैं एक इंसान को कंटिन्यू फोन करूंगा, 2 दिन फोन करूंगा, तीसरे दिन मेरे को अननोन नंबर से भी कॉल करेगा, तब भी मैं उसकी आवाज पहचान लूंगा। उसी तरह परमेश्वर है। जब आप कंटिन्यू उसके साथ बैठोगे, कंटिन्यू उसके वचनों के ऊपर मनन करोगे, कंटिन्यू उसकी सुनोगे, तो आप उसकी आवाज को सुनना सीख जाओगे। बात करता परमेश्वर, वो स्टिल बात करता है, बट हम उसकी आवाज सुनना नहीं चाहते। हम सिर्फ अपने फ्लैश को, अपने शरीर की इच्छाओं को,
कोई नीड को हम लेके चलते हैं। इसलिए प्रार्थना है परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट करना, परमेश्वर के साथ बात करना प्रार्थना है। आप उसकी सुनो, जब आप उसके साथ बैठे हो तो उसकी सुनो। जब आप उसकी सुनोगे वो आपको अपने आप को प्रकट करेगा और अपनी विल, अपनी डिजायर को आपके ऊपर प्रकट करेगा। फिर आपको बताएगा कि कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे परमेश्वर में चलना है, कैसे कैसे चलना है उसके रास्ते के ऊपर, वो सब कुछ बताएगा। वो आज भी कोई परमेश्वर, वो ना बदलने वाला परमेश्वर, वो आपसे बात करनी चाहिए। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष देता हूं। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए। प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया प्रभु आ जाए, आपकी दया उनके ऊपर आ जाए। प्रभु जितने भी लोग मुझे सुन रहे पिता परमेश्वर, आज का ये वचन प्रभु उनकी जिंदगियों में काम करेंगे। प्रभु जितने भी लोग सुन रहे मेरे खुदावंद पिता, आपकी महिमा को प्राप्त करेंगे आज। प्रभु आज इनकी जिंदगियों में प्रभु प्रेयर लाइफ का अनुग्रह प्रभु इनकी जिंदगी के ऊपर आए पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आज आपका प्रेरित होने के नाते प्रभु आज इनकी जिंदगी में घोषणा करता हूँ प्रभु प्रेयर लाइफ फेवर को मांगता हूँ प्रभु, प्रेयर लाइफ अनुग्रह को मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता मैं, और डिक्लेयर करता हूँ प्रभु मैं आपका प्रेरित होने के नाते इनकी जिंदगी में प्रभु प्रेयर लाइफ फेवर, प्रेयर लाइफ अनुग्रह प्रभु इनकी जिंदगी में आए पिता परमेश्वर। प्रभु इनके आत्मिक कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। प्रभु ये आपकी आवाज को सुनने वाले हो जाए मेरे प्रभु आपकी आवाज को क्लियरली सुने पिता आज के बाद यीशु मसीह के नाम से पिता। प्रभु आपकी महिमा प्रभु आज अपने आप को इनके ऊपर प्रकट कीजिए मेरे प्रभु ताजो प्रभु ये आपके सिखाए हुए रास्ते पर चल सके पिता परमेश्वर। प्रभु आपको फॉलो कर सके मेरे प्रभु आपके मार्गों पर चल सके मेरे प्रभु जी। प्रभु मैं आज इनकी जिंदगी पर डिक्लेयर करता हूं प्रभु जितने भी लोग मुझे बीमार देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आज मैं इनकी जिंदगी में चंगाई की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक बीमारी आज इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी आज इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आज पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके ऊपर उतरे आज, और हर बीमारी इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए। हर लकोरिया इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए। हर एक रसौलिया इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए। हर एक अंधकार इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए। हर एक सर्वाइकल इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए। हर एक स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिसीज इनके परिवार को छोड़े, इनको छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु, इसे वक्त तो चंगे हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं आज आजादी को इनके जीवन पर डिक्लेयर करता हूं प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु, दया कर प्रभु जी, और ये आजाद हो सके पिता, और ये ब्लेस हो सके यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं आपके फेवर को इनके ऊपर रिलीज करता हूं प्रभु, इनके घरानों के ऊपर आपके फेवर को रिलीज करता हूं प्रभु। हर एक जन को पिता मैं आपके ब्लड में कवर करता हूं प्रभु। कोई मरी, कोई अंधकार प्रभु इन्हें छूने ना पाए प्रभु जी। मैं आज ब्लेस करता हूं, आजाद घोषित करता हूं खुदावंत प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित दे, और प्रभु अपने घर पे रहिए और परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए, ताकि परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर बना रहे।